Today we are going to see the first fundamental theorem of homomorphism, that is already we had seen. The statement of first fundamental theorem of homomorphism is as given as let G and G dash be two groups, and if phi from G to G dash with the binary operations O and star is nothing but onto homomorphism, and suppose kernel K phi, or in general we will say that by convention we had said that K phi is nothing but K. अगर हमारे पास phi होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिया गया है तो हम उसके ऊपर से कर्नल फाइंड कर पाएंगे और उसको हम बोलेंगे K. So if K is a kernel of homomorphism, then what we have is in the statement of first fundamental theorem of homomorphism that you will get that G quotient K, where K is your kernel of phi. That means it will be a normal subgroup of G. Okay, so G quotient K is well defined. Quotient group can be made from this kernel. So G quotient K is isomorphic to nothing but the G dash. That means phi from G to G dash is onto homomorphism given, and K is a normal subgroup of G. Then G quotient K will be isomorphic to G dash. That was the first fundamental theorem of homomorphism, and the proof we had seen. ओके, सो जस्ट जैसे ही जो प्रूफ के लिए हाइपोथेसिस जो दी गई है उसी के हिसाब से हमने प्रूफ भी देखी. सो नाउ वी विल सी corollary based on first fundamental theorem of homomorphism and some of the examples on that. So let us have seen the corollary and examples on first fundamental theorem of homomorphism as in the PDF given as the RPDF. Okay, so let us see the first fundamental corollary of first fundamental theorem of homomorphism as well as applications of first fundamental theorem of homomorphisms. So as we can see here, the statement of first fundamental of theorem of homomorphism is given that if phi from G to G dash is an onto homomorphism with kernel K, then G quotient K is isomorphic to G dash. Okay, so what we have to show is G quotient K is isomorphic to G dash. That means there is one isomorphism say psi from G to G dash such that we can define over here a homomorphism. Suppose there is a mapping psi from G quotient K to G dash such that this psi is nothing but isomorphism between G quotient K to G dash. We are given phi is onto homomorphism, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम psi को दिखाएंगे. मतलब if you can see that psi is a 1 onto and homomorphism, then it will be isomorphism. It can be seen that it is an isomorphism. So for that we will choose the onto-ness of this psi. Also for oneness we will prove onto-ness of psi, homomorphismness of psi. That means psi preserves the binary operations. G के लिए हम O को डिफाइन करेंगे और G dash के लिए हम स्टार को डिफाइन करेंगे. And also for oneness of psi we will prove that psi is nothing but kernel of psi. Okay, say kernel of psi is nothing but the identity element of G quotient K. We know that G quotient K is a quotient group, so the kernel element, whatever the normal subgroup whose from that we can make G quotient K, जो मतलब कि जिस हिसाब से quotient group हमने बनाया है उस quotient group जिस नॉर्मल सब ग्रुप से बना है वही उस क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है. ओके, वी हैड सीन दिस. सो कर्नल ऑफ psi विल नथिंग बट K. इफ़ यू कैन सी दैट. ओके, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, इफ़ वी हैव 3 चॉइसेस ओनली, psi को हम 1 दिखाते हैं, ऑन टू दिखाते हैं और होमोमॉर्फिज्म, सो वी विल ओनली सी दैट psi इज़ ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म. सिमिलरली 1 दिखाने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, कर्नल ऑफ psi इज़ नथिंग बट K ओनली. दैट मीन्स K phi ओनली. इतने 3 स्टेप्स अगर हमने दिखा दिए तो हमारा ये थियरम प्रूव हो जाएगा. ओके, सो वी हैड सीन अर्लियरली इन द ऑनलाइन लेक्चर्स दैट हाउ टू प्रूव द होल थियरम, एंड देयर इज़ वन अगेन वी कैन सी दैट हियर इट इज़ फिगर गिवन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि psi ओ गामा, मतलब psi हमने ज़रूरत के हिसाब से
डिफाइन किया, मतलब जो हमें प्रूव करना है वही हमने डिफाइन किया। और गामा एक नया वाला हम लेंगे मैप, जो कि कहाँ से कहाँ का मैप होगा, G टू G कोशेंट K, और K इज़ नथिंग बट K फाई, राइट। तो हम गामा को भी एक मैप लेंगे, और शाय ओ गामा जब हम करेंगे तो हमें फाइनल, हमें जो दिखाना है फाई वॉज गिवन ऑलरेडी, तो फाई का यूज़ करेंगे और शाय ओ गामा एक डेफिनेशन बनाएंगे। सो हमें G टू G डैश एक मैप मिलेगा, सो दैट इज़ फाई ऑलरेडी गिवन। सो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि G कोशेंट K इज़ आइसोमॉर्फिक टू G डैश, राइट। So this is given. We had already seen. So psi is on to, very much easy. Psi is homomorphism. Homomorphism दिखाने के लिए psi कहाँ से कहाँ का है, G quotient K phi to G dash. By the definition of G quotient K phi is what? Psi of K A. For any A belongs to G, I am fixing my A. So psi of K A equals to G dash. और phi हमें पता है phi is on to homomorphism, तो G डैश का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू G, शाई ऑफ के ए इक्वल्स टू फाई ऑफ ए। ओके, सो ये इस डेफिनेशन के हिसाब से हम प्रूव करेंगे कि शाई इज होमोमॉर्फिज्म। सो वी विल टेक टू एलिमेंट्स ऑफ G कोशेंट K, राइट, X एंड Y, के जी एंड के एच, फॉर एनी G एंड H बिलोंग्स टू G। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज G का ऑपरेशन क्या है, O है। सो विल डू इट, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ओ वाई, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, KGOKH। ओके, मतलब KGOKH, वहाँ पे तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, क्योंकि हम कॉसेट का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट विल गिव्स मी KGOH, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट कॉसेट्स और लेफ्ट कॉसेट। दैट इज सपोज KA प्रोडक्टेड विथ KB अगर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि K इज़ कंपोज KAOB, मतलब AOB जो हमारा, या फिर ये जो भी डोमेन हम हमारा लेते हैं, ये क्या है, KA और KB कहाँ के एलिमेंट्स हैं, दिस एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू G कोशेंट, मतलब G अगर आपका ग्रुप है तो G कोशेंट K के ये एलिमेंट्स हैं, KA एंड KB, राइट। तो AOB कहाँ के एलिमेंट होंगे, G के, अगर आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G इज़ O। सो दिस इज़ देयर। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और हमने ये पहले से ही प्रॉपर्टी देखी हुई है। सो वी हैव व्हाट, XY प्रोडक्टेड विथ KG, that KG इंटू KH इज़ नथिंग बट KGOH। हमें क्या दिखाना है, शाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो शाई इज़ होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या दिखा पाएंगे, इफ़ शाई ऑफ XY इज़ गिवन दैट शाई ऑफ X और G डैश का एलिमेंट्स है, तो उसके पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार, सो शाई ऑफ X स्टार शाई ऑफ Y। इफ़ वी कैन शो दैट दिस इज, देन योर शाई इज़ नथिंग बट ऑन टू एंड ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म। सो फॉर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं शाई ऑफ XY, दैट इज एक्स, शाई ऑफ XY की हम वैल्यू पुट करेंगे KGOH, बट शाई ऑफ KGOH, शाई की डेफिनेशन क्या है, शाई ऑफ KA equals to phi of A. So by that we will use this, phi of KGOH is nothing but phi of GOH. Phi is given on to homomorphism. Homomorphism already given है, तो ये homomorphism की definition के हिसाब से phi क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। So phi of G star phi of H is nothing but psi of X star psi of Y. Hence we are done. ओके, और फिर जो लास्ट में है, कर्नल ऑफ psi कंसिस्ट ऑफ ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ K। ओके, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट K ऑफ G कोशेंट H, नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ K, बट जस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट K ऑफ G कोशेंट H, राइट। सो यहाँ पे वो भी हमने ये प्रूव किया है, शाई ऑफ X इक्वल्स टू E डैश, और E डैश अगर हमें मिला तो हमें कर्नल की डेफिनेशन, कोई भी अगर आपके पास मैप है तो कर्नल की डेफिनेशन हमेशा क्या रहती है, दैट इज़ इफ़ यू हैव एनी मैप, से फाई हमारे पास एक मैप है G टू G डबल डैश, सब सपोज, तो इसके कर्नल की डेफिनेशन क्या होती, K फाई इक्वल्स टू, वी हैव टू कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू G सच दैट फाई ऑफ A इज़ नथिंग बट E डबल डैश, राइट। E डबल डैश कहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट है, G डैश का। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि X इक्वल्स टू, ये शाई ऑफ X इक्वल्स टू E डैश हो रहा है, तो हमेशा ही X को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G कोशेंट K। ओके, और G कोशेंट K का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है K। हेंस व्हाट वी हैव इज
ओनली द एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने कोई भी रैंडम एलिमेंट एक्स लिया था तो पर वो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट. हेंस शाई ऑफ ई डैश इक्वल्स टू शाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ ए, बिकॉज वी नो दैट शाई ऑफ एक्स और एक्स हमने क्या लिया है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू के ए. तो शाई ऑफ के ए इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, फाई ऑफ ए. सो हमें ये क्या मिल गया, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू के गिव्स एक्स इक्वल्स टू के ए विच इज नथिंग बट के. सो हेंस जो हमने रैंडम एक्स लिया था उसका हमें आंसर मिल गया कि वो तो के ही है. इफ़ योर ए बिलोंग्स टू के देन वी नो दैट, अगेन यहाँ पे एक फैक्ट यूज़ किया है कि ए इक्वल्स टू के इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू के, राइट. ये हमें प्रूव करना, ये हमें ऑलरेडी पता है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस. ओके, सो एज दिस बाय दिस थ्योरम, ये सारी कंडीशन के हिसाब से ये जो शाय है वो क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है. दैट मीन्स जी कोशेंट के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. ओके, hence there is remark one remark is there, if the homomorphism phi is not on to. सपोज आपके जो हमारे जो फर्स्ट फंडामेंटल थियरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हमने जो होमोमॉर्फिज्म ली है वो ऑन टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑन टू नेस थी तो हमने क्या उसका यूज़ किया, जी डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ जी, हमने पूरा का पूरा यूज़ किया. तो हमें वो फाई ऑफ जी के हिसाब से हमें जो शाई की डेफिनेशन थी उसमें हमने आंसर में क्या रखा था, यहाँ पे फाई ऑफ ए रखा था बिकॉज ऑफ द ऑनटूनेस ऑफ फाई, राइट. बट सपोज हमारे पास ऑनटूनेस नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे, तो भी हम लेस कंडीशन के हिसाब से भी हम ये वाला थियरम प्रूव कर पाएंगे. ओके, सो टेकिंग फाई ऑफ जी इंस्टेड ऑफ जी डैश तो भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या था, ऑन टू हमें होमोमॉर्फिज्म दी गई थी, दैट मीन्स जी डैश पूरा का पूरा फाई ऑफ जी हो रहा था. पर जब भी ये फाई ऑन टू नहीं होगा सो क्या होगा, जी डैश विल नॉट इक्वल टू द फाई ऑफ जी. बट ये हमेशा सही होगा कि फाई ऑफ जी इज़ ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश. ओके, ये तो हमेशा सही रहेगा प्रीवियस थियरम में. तो हम क्या लेंगे, उसका सब ग्रुप तो हो रहा है ना, तो हम वो लेंगे, जी डैश पूरा का पूरा नहीं लेंगे पर फाई ऑफ जी इंस्टीड ऑफ जी डैश. सो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म कहाँ जाएगा, ओनली फाई ऑफ जी के पास. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जी डैश नहीं हो रहा है, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश, मतलब जी डैश से का बहुत कुछ यहाँ पे कम एलिमेंट्स हैं. बट दो जी कोशेंट के विल बी आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ जी, राइट. मतलब कि हम थियरम की जो स्टेटमेंट है, वैलिडिटी है, वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, वो सही रहेगी हमेशा, वो गलत नहीं होने वाली है. ओके, इफ़ योर जी फाई ऑफ फाई इज़ नॉट ऑन टू देन ऑल्सो योर थियरम स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे कमी नहीं है, जैसे कि लाग्रांजिस थियरम में हमने देखा था कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था पर अगर आप उसका कन्वर्ट्स पार्ट देखेंगे तो वो वहाँ पे गलत हो जा रहा है. तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ, अगर आपके पास जी कोशेंट के इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है तो ऑलरेडी यू विल फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म और आपको एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी. मतलब कन्वर्ट्स पार्ट भी देखना होगा तो वो भी यहाँ पे इजी रहेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर सेइंग दिस, as G quotient K is isomorphic to G dash in theorem number 13.2.3, that is first fundamental theorem of homomorphism. They are identical with respect to their structures as groups and this is the main reason for the importance of this theorem. Okay, जबकि हमने बहुत पहले से ही बात की है कि आइसोमॉर्फिज्म वो क्या करता है, अगर आपके पास एक सेट है और एक ये ग्रुप है और ये अनदर ग्रुप है, पर अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे आपने कुछ चेंज किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा. और अगर यहाँ पे आपको कुछ चेंज देखना है और अगर आपने यहाँ पे टेस्ट किया तो वो भी यहाँ पे टेस्ट भी ये सेम रहेगा. तो हम अगर रिसेंट अगर हम कंडीशन देखें तो सपोज़ कोरोना की जो वैक्सीन ढूंढी जा रही है, ठीक है, तो वो हम इंडिया में भी कोई कोई जो साइंटिस्ट हैं वो कई सारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, एज वेल एज़ अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें भी देखा जा रहा है. पर ऐसा नहीं होगा कि चलो यूरोप में जो वैक्सीन फाइंड की है तो वो इंडिया में नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है. मतलब कि अगर हम आइसोमॉर्फिज्म का कुछ यहाँ पे यूज़ कर पाएँ कि सपोज़ वहाँ पे जो एलिमेंट है, मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो वेदर के हिसाब से उसके ऊपर ये वैक्सीन का असर हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, ह्यूमन बींग का सेट ही है, तो ऑलवेज़ यहाँ पे भी वैक्सीन का असर तो होना ही है, ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूरोप में जो टेस्ट हुआ वो इंडिया में नहीं चलेगा.
सो सिमिलर थिंग्स हम यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म में भी देख पाएंगे. सो दिस थियरम गिव्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विच विल बी आइसोमॉर्फिक टू अ गिवन ग्रुप. ओके, मतलब ये एक कंसिडरेशन मिला या फिर हमें एक क्राइटेरिया मिल गया कि अगर आपको ग्रुप के हिसाब से कोई अनदर ग्रुप को आपको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मतलब कि आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेक करनी है, तो वो प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए आपको बहुत सारे कुछ भी फंडामेंटल्स यूज़ करने ज़रूरी नहीं है. अगर आप डायरेक्ट ही ऐसा कुछ बता पाएँ जो नॉन ग्रुप हमारे पास है, उसके हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम दिखा देते कि ये भाई जो नया वाला ग्रुप है वो कोई कुछ नहीं, पर जो पुराना वाला ग्रुप था वैसा ही थोड़ा थोड़ा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम दिस ग्रुप्स विल बी ऑफ द फॉर्म जी कोशंट एच. मतलब आपके पास अगर जी डैश के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमेशा ही जी कोशंट एच के जैसा ही दिखेगा इफ़ योर एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. ओके, ये यहाँ पे कंसिडर नेसेसरी कंडीशन है where H is a normal subgroup of G. Also as proved in theorem 13.1.1, for any normal subgroup H of G, the quotient group G quotient H is isomorphic to G. ये भी हमने देखा था. Thus if we want all groups homomorphic to a given group G, मतलब कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि गिवन ग्रुप जो G है उसके हिसाब से आपको फाइंड करने हैं कि उसको कितने होमोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेंगे, मतलब जो आपका नोन ग्रुप है उसके जैसे और कितने ग्रुप्स आपको दिखेंगे, तो वो भी हम फाइंड कर पाएंगे. देन वी कैन फाइंड देम ऑल्सो एज फॉलोज. मतलब उसके लिए प्रोसीजर है कि फर्स्ट ऑब्टेन ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड देन ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कोशंट ग्रुप्स. मतलब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट फंडामेंटल, ये देखिए फर्स्ट फंडामेंटल थियरम है. फंडामेंटल की हम बात कब करते हैं, फंडामेंटल रूल्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल्स रूल्स ऑफ फिज़िक्स, फंडामेंटल रूल्स ऑफ मोशन, ऐसा भी हमने पढ़ा है. मतलब वो वाले ऐसे रूल्स हैं जो कभी भी उसमें चेंज नहीं होगा, और चेंज हुआ तो भी पूरे की पूरी थियोरी चेंज हो जाएगी. राइट, तो यहाँ पे भी होमोमॉर्फिज्म के लिए फर्स्ट फंडामेंटल थियरम है. मतलब आप उसको या फिर उसमें जो भी यूज़ हुआ है उसको हम हमेशा यूज़ कर पाएंगे आगे भी. सो हम इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू यूज़ दिस. फर्स्ट ऑब्टेन ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी. मतलब को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए. देन यू हैव टू डिफाइन कोशंट ग्रुप्स ऑफ, मतलब फैमिली भी बना सकते हैं जितने नॉर्मल सब ग्रुप बने. सपोज़ आपके पास जी के 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं एच आईज, तो आप क्या बना पाएंगे, जी कोशंट एच आई. मतलब आपके पास 4 कोशंट ग्रुप बन जाएंगे. ओके. So this family of quotient groups is the required collection of groups up to isomorphism. मतलब कि अगर आपके पास G कोई दिया गया है तो G को कितने आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हो पाएंगे वो भी हम पता कर पाएंगे. ओके, सो यूजिंग दिस थियरम 13.2.2, दैट मीन्स फर्स्ट फंडामेंटल थियरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, we can prove result regarding homomorphism defined on cyclic group of prime order. ओके, मतलब कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, ये बहुत ही आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर साइक्लिक, मतलब कि उनके पास खुद ही उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा, सपोज जी इज़ साइक्लिक ग्रुप तो उसके पास एक ऐसा एलिमेंट तो ए बिलोंग्स टू जी होगा ही होगा जो कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा. राइट, सो दिस इज नथिंग बट द साइक्लिसिटी ऑफ जी. और साइक्लिक ग्रुप है तो उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स भी स्पेशल होते हैं. और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ दी गई है वो प्राइम ऑर्डर की बात की है. जब भी प्राइम ऑर्डर की बात होती है तो वो बहुत ही कंसिडरेशन, मतलब प्राइम ऑर्डर का मतलब क्या है, आपके पास ये पूरा का पूरा एक सेट है, मतलब ये पूरी दुनिया है ग्रुप्स की, उसमें से प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स मतलब इतने ही दिखेंगे आपको. ठीक है, बाकी सब ये अब आपको मिलेंगे, पर प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं. और तो फिर उनकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है और वो पावरफुल होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप्स. राइट, सो वी विल सी द थियरम नंबर 13.2.4 which is based on cyclic group of prime order. If G is a cyclic group of prime order, then a homomorphism phi from G to G, that is nothing but, इसको हम क्या बोलेंगे, सपोज ये आइसोमॉर्फिज्म हमें यहाँ पे नहीं दी, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म बट इट इज़ जस्ट अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी. तो यहाँ पे हम अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, ओके, दैट मीन्स उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि उसका ऑर्डर और
ऑर्डर ऑफ जी दोनों सेम होंगे ऑफ प्राइम ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्राइम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सपोज पी इज़ प्राइम, तो पी का जो फैक्टर होगा वो या तो पी है या तो 1 है, इसके अलावा इसके फैक्टर्स कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम लाग्रांजिस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये वाले टर्म्स हमें यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ what says Lagrange's theorem, if H is a subgroup of G with G is finite order group, तो ऑर्डर ऑफ H भी फाइनाइट होगा, तो ऑर्डर ऑफ H will always divides ऑर्डर ऑफ G, दैट मीन्स दी Lagrange's theorem is there। तो ये भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। फाई इज़ आइदर एन आइसोमॉर्फिज्म, मतलब कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर दिया गया है तो आपका होमोमॉर्फिज्म डायरेक्टली आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। ओके डायरेक्ट देखिए, अगर आप जी से जी की होमोमॉर्फिज्म लेते हैं तो ऑनटूनेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं वो साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है वो है। ओके या तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू ई फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, राइट। सो वी विल सी द प्रूफ ओवर हियर। मतलब यहाँ पे हमें दो कंडीशन देनी है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये और वाली कंडीशन है, दैट मीन्स हमें सपोज हम जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन यू विल से दैट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है तो इसके ऊपर से आप क्या इम्प्लाई कर पाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि या तो a इक्वल टू ज़ीरो होगा और b विल बी ज़ीरो। ओके तभी के तभी आप बता पाएंगे कि a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके सो वी विल प्रूव दिस थ्योरम एज लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। we know that कि G is a cyclic group of prime order और homomorphism just phi from G to G दी गई है। ओके तो हम ऑब्वियसली कर्नल ऑफ फाई पता कर पाएंगे और वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। सो के फाई बीइंग अ सब ग्रुप ऑफ G, तो सब ग्रुप अगर मिल गया है ओके और प्राइम ऑर्डर का है यहाँ पे G, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनाइट है, प्राइम ऑर्डर का कुछ भी है वो फाइनाइट ही रहेगा। तो फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप आप कोई भी लेते हैं तो वो भी फाइनाइट रहता है। तो और अगर वो फाइनाइट नहीं भी है तो भी लाग्रांजिस थ्योरम से हम क्या लिख पाएंगे, बिकॉज के फाई इज़ बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप, दैट मीन्स सब ग्रुप तो है ही वो, तो लाग्रांजिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे यूज़ होगा। दैट मीन्स वो कैसे, के फाई बीइंग अ सब ग्रुप ऑफ जी वी हैव ऑर्डर ऑफ के फाई विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, राइट। Since order of G is prime, we have either order of k phi equals to 1 और order of k phi equals to order of G। मैंने पहले ही हमने यहाँ पे देखा कि सपोज ऑर्डर ऑफ G क्या है, एक प्राइम नंबर P है, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, P इंटू 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ G कैन बी आइदर P और इट इज़ 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। सो ऑर्डर ऑफ G इज़ प्राइम, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ k phi इज इक्वल्स टू 1 और ऑर्डर ऑफ के फाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जो ये और स्टेटमेंट चाहिए था वो हमें और मिल गया, बस जस्ट हमें इसका मतलब लिखना है कि ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी है, दैट मीन्स व्हाट, मतलब हम सपोज ये लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू 1, तो उसका मतलब होता है कि के फाई में कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट ओनली 1 एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है। और हमें पता है कि के फाई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा कोई किसी भी ग्रुप में रहता ही है। ओके सो ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू 1 का मतलब है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी है, दैट मीन्स यहाँ पे के जी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी ऑर्डर ऑफ के फाई, मतलब के फाई के भी एलिमेंट्स ही हैं। ओके सो ये वननेस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे वननेस भी नहीं है। ओके सो नाउ सपोज हम लेते हैं कि सपोज ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू 1, जो कि हमने यहाँ पे आइदर दिस और दिस ये ट्रू है, तो हम ये लेते हैं तो ये वाला ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। और ओके सो वी कैन से दैट यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, और की कंडीशन दी गई है इसलिए। नाउ इफ़ ऑर्डर ऑफ के फाई इक्वल्स टू 1 अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, के फाई इक्वल्स टू दी सेट आइडेंटिटी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि के फाई में कितने एलिमेंट होने चाहिए, जस्ट 1, तो 1 एलिमेंट है तो वो तो कौन सा ग्रुप होगा, वो ऑब्वियसली ट्रिवियल ग्रुप ही होगा, राइट। सो के फाई इक्वल्स टू द सेट ई, इसका मतलब के फाई का मतलब क्या होता है, के फाई इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी सच दैट
फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ई। तो आपको ये क्या मिल रहा है, के फाई इक्वल्स टू द सेट ई, उसका मतलब क्या होता है कि फाई ऑफ ए इज ऑलवेज ई, ओके, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। दैट इज यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, फाई 1 1 है, सिंस जी इज अ फाइनाइट सेट फाई विल बी ऑन टू। यहाँ पे एक थियरम का हम यूज़ कर रहे हैं, आपको ये पता लगाना है कि हमने ये कौन सा थियरम यूज़ किया है, ओके। ऐसा एक टी फ्रॉम लीनियर मैप के लिए भी था। अगर टी फ्रॉम यू टू वी एक लीनियर मैप है और यू एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वी भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यू अगर आपको 1 1 दिया गया है तो यू ऑटोमेटिकली 1 2 हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन दी गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर फाई आपको 1 1 मिला, जी फाइनाइट सेट है, तो फाई फ्रॉम 1 1 फ्रॉम जी टू जी विल नथिंग बट फाई इज ऑन 2। तो ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया, और फाई होमोमॉर्फिज्म तो दिया गया है, तो यहाँ पे आपने क्या बताया, फाई इज नथिंग बट एन आइसोमॉर्फिज्म, वो हमने बता दिया। इन अदर वर्ड्स फाई विल बी एन आइसोमॉर्फिज्म, ओके। और अगर हम ये 1 नहीं लेते हैं, ओके, सो इफ़ ऑर्डर ऑफ के फाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, तो हम क्या लिख पाएंगे, हमें क्या बताना है, फाई ऑफ ए इज़ नथिंग बट ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो हमें पता है कि के फाइव इज विल ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, दिस गिव्स व्हाट, के फाई इक्वल्स टू जी, बिकॉज ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके दोनों के ऑर्डर सेम हो रहे हैं, और हमें पता है कि एक जो होगा वो दूसरे का सब ग्रुप भी होगा। दैट मीन्स इट अलाउस यू व्हाट, कि ये मतलब एक दूसरे के सब ग्रुप हैं, के फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी, और के फाई के जितने भी एलिमेंट हैं उतने ही जी के एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, के फाई इक्वल टू जी ही होना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ई ओनली, राइट। सो दिस इज नथिंग बट दिस। नेक्स्ट टाइम वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 13.2.1, hence it is okay, bye.